Hello students, today I will explain you adding frames in a web page. Okay, adding frames in a web page. So firstly, what is frame? What is a frame? Frame, that means when you divide the web pages in multiple sections of the same browser window, then use a frame. Okay, so you can say that dividing browser window into multiple sections to display separate web page can be easily done with the help of the frame. Okay, that means कि आपका, for example, this is a browser window, and in this browser window you add 4 web pages. Okay, so if you want to add 4 web pages in same browser window, in one browser window, then use a frames. Okay, that means then use a multiple section, and in multiple section you adjust a 4 HTML या 4 web pages file using frame. That is a one HTML file, that means a.html, b.html, c.html and d.html. Here is 4 web pages that is display on the same web pages या in the same browser window. Okay, so how to create a web frames in a web page? कैसे create करते हैं? Firstly, if you want to create a frames in a web browser या फिर in a web page या in a same window, browser window, the table is divided to row and column. Okay, the table is divided into row and column. The browser window is also divided, arranged into row and column. Table, that means it is a combination of row and column, and browser window is also divide and arrange the data into rows and column. There is a 4 HTML file and here is 2 rows and 2 column. ओके, यहाँ पर क्या है, 4 वेब पेजेस फाइल है और यहाँ पर 2 रो है एंड 2 कॉलम है. इन्हीं 2 रो एंड 2 कॉलम्स में आपकी ये फ्रेम्स, ये फाइल्स क्या है, एडजस्ट है. तो फ्रेम्स में आपका डेटा जो अरेंज होता है, दैट मीन्स आपका जो फ्रेमिंग बनेगी, वो फ्रेमिंग किसके थ्रू बनेगी? जैसे टेबल में हम डेटा रखते हैं रोज़ एंड कॉलम के फॉर्म में, उसी तरीके से फ्रेम जब डिवाइड करते हैं तो फ्रेम में जो हम डेटा रखेंगे वो रोज़ एंड कॉलम में रखेंगे, मतलब रोज़ एंड कॉलम डिफाइन होगा. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से. वे भी हो सकता है यहाँ पर एक पूरी फाइल आपने टॉप में दे दी और नीचे बॉटम में 2, एक इधर लेफ्ट और एक इधर राइट. ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये टॉप हो गया. ओके, और अगर नीचे बॉटम में भी तो नीचे एक बॉटम में दे दी. तो इस तरीके से फ्रेमिंग सेट करना हो, तो जिस अकॉर्डिंग भी फ्रेमिंग सेट करना हो वो आप पे डिपेंड करता हो. आप यूज़ करोगे फ्रेम टैग का. ठीक है, तो फ्रेम टैग का यूज़ करने के लिए फर्स्टली यू यूज़ अ फ्रेम सेट टैग. क्या यूज़ करते हैं? फ्रेम सेट टैग. ये फ्रेम सेट टैग का यूज़ करते हैं. फ्रेम सेट टैग, दैट मीन्स इट डिफाइंस एंड टेल्स अ ब्राउज़र of how to divide the browser into separate frames. That means this is a frame set tag. और ये frame set tag क्या डिफाइन करेगा कि ब्राउज़र को बताएगा कि आपकी जो विंडो है वो सेपरेट फ्रेम्स में डिवाइड होगी. सो यूज़ अ फ्रेम सेट टैग फॉर क्रिएटिंग अ फ्रेम्स. ठीक है, फ्रेम सेट टैग इज यूज टू मेक फ्रेम्स इन अ HTML डॉक्यूमेंट. फ्रेम सेट टैग के थ्रू used to make a frames in a HTML document. If you want to an HTML document to be divided into frames, then you should use frame set tag. Okay, if you want to divide the HTML documents into the frame, then use a frame set tag. Frame set tag use instead of body tag. Frame set tag use instead of body tag. ओके, ये लाइन याद रखिएगा. फ्रेम सेट टैग यूज इंस्टेड ऑफ बॉडी टैग. बॉडी टैग की जगह पर हम फ्रेम सेट टैग का यूज़ करते हैं इफ़ यू वांट टू HTML डॉक्यूमेंट टू बी डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स, देन यूज अ फ्रेम सेट टैग.
Okay. Okay. So how it's create? Firstly, you see attributes of frame tag. There is rows tag, goals tag, SRC tag. ओके. और आपका एक मेन क्या है? फ्रेम सेट टैग. फ्रेम सेट टैग इज अ मेन टैग and according to your choice you use these type of tag in a frame set tag. Okay. rows, goals and SRC. अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको डिस्क्राइब करते विद कोडिंग. ओके. जैसे आपने यहाँ पर 3 फाइल्स बनाई. फॉर एग्जाम्पल एक फाइल बनाइए top.html की. ओके. जहाँ पर आपने इसकी कोडिंग करी है नॉर्मल HTML और फिर H1 नॉर्मल यूज़ कर दीजिए और H1 में ले दिया एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम्स. H1 क्लोज कर दिया. देन आपका HTML क्लोज हो गया. ये पे बॉडी टैग स्टार्ट कर दो. बॉडी टैग यहाँ पर बॉडी टैग यूज़ कर दिया था. ठीक है. ये एक बन गई top.html. किसी तरीके से आपने एक बना लिया left.html. इसकी कोडिंग कर दी. नॉर्मल ऐसे ही कर दीजिए. एक आपने बना दिया right.html. ओके. उसकी कोडिंग कर दी. नॉर्मल आप लिखोगे HTML बॉडी H1. एक सिंपल आपने एक फाइल बना दी है. चाहे उसमें जो भी डेटा देना हो वो आप दे सकते हो. 3 आपकी फाइल बन गई. अब ये 3 फाइल्स आर जस्ट इन अ वन ब्राउज़र विंडो. यू वॉच इन अ यू सी इन अ वन ब्राउज़र विंडो. सो यूज़ अ फ्रेम सेट. क्या यूज़ करेंगे? फ्रेम सेट टैग यूज़ करेंगे. ओके. ये आपकी 3 फाइल बन गई. अब फ्रेम सेट टैग का यूज़ कैसे करेंगे देखिए. हमने आपको बताया था हम यहाँ पर कोडिंग लिख दे रहे हैं. फिर वो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन्हीं कोड के थ्रू हम आपको डिस्क्राइब करते जाएंगे. सबसे पहले HTML ऐड टाइटल वो वैसे ही लिखेंगे बट इंस्टेड ऑफ बॉडी यू यूज़ अ फ्रेम सेट टैग. ओके. बॉडी टैग की जगह क्या यूज़ करेंगे? फ्रेम सेट टैग. तो फ्रेम सेट और फ्रेम सेट के बाद हम यहाँ देते हैं रोज़. रोज़ दैट मीन्स कि आपका जो फ्रेम डिवाइड होगा वो कैसा, कितने रो रहेंगे, क्या है उसका एडजस्टमेंट बताता है. ठीक है. रोज़ एंड कॉलम. तो हमने यहाँ पर दे दिया. आपको ये फाइल हटा दो तो पूरी कोडिंग इधर से लिखते थे. 3 हमने फाइल बनाई है top.html, left.html एंड right.html और यू डिस्प्ले इन अ वन ब्राउज़र विंडो. यू वांट टू डिस्प्ले इन अ वन ब्राउज़र विंडो. ठीक है. तो उसके लिए कोडिंग कर रहे हैं. फर्स्टली यूज़ अ फ्रेम सेट टैग देन रोज़. अब रोज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जितने भी परसेंटेज देना है आप उतने परसेंटेज का यहाँ पर दे सकते हो. ठीक है. जैसे हमने दे दिया 25% एंड 75%. 25% 75% डिस्क्राइब द डिवाइडिंग ब्राउज़र विंडो इनटू रोज़. दैट मीन्स योर ब्राउज़र विंडो इज डिवाइड इनटू 25% एंड 75% rows. Okay. Then use a frame. यहाँ पर 2 टैग्स. पहला फ्रेम सेट टैग यूज़ किया. फ्रेम सेट टैग्स इट डिफाइंस द, क्या डिफाइन करेगा? इट टेल्स द ब्राउज़र टू डिवाइड द विंडो इनटू सेपरेट फ्रेम. फ्रेम सेट टैग क्या डिफाइन कर रहा है? इट टेल्स द ब्राउज़र टू डिवाइड द विंडो इनटू सेपरेट फ्रेम्स. ओके. फिर देन आपने यूज़ किया फ्रेम टैग. फ्रेम टैग इज यूज्ड इनसाइड द फ्रेम सेट टैग. Frame tag is used inside the frame set tag. That is assign a name of each frame. And to specify in a HTML document to be open in a particular frames. Then use a frame tag. Okay. So frame name. अब आपने इसको जैसे टॉप में रखना है तो टॉप. ओके. फिर यूज अ SRC. क्या दिया था आपने?
.stm. ओके, ये डिफाइन द टॉप फ्रेम एट इट्स सोर्स. टॉप फ्रेम आपका टॉप में जो फ्रेम रखता है उसका. फिर उसके बाद फिर अगेन यू राइट, अगेन आपने फिर से स्टार्ट क्या कर दिया, फ्रेम सेट टैग. अब इस फ्रेम सेट टैग को, फ्रेम सेट टैग अब इसको पोल्स में, जैसे ये ऐसे कर रहे हो, ये इस तरीके से आउटपुट आएगा. तो ये आपने रोज बना दी, तो रोज आपकी 25% और 75% की रोज बनती. और दूसरा आप पोल्स में कर रहे हो, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, तो इधर लेफ्ट और इधर राइट दो फाइल आप ओपन करोगे. ठीक है, तो कॉल्स में हमने कर दिया 25% एंड 75%. ओके, फिर इसके बाद अगेन यूज फ्रेम नेम दे दिया, लेफ्ट src दे दिया आपने, left.html फाइल बनाई थी ना पहले से. ओके, फिर अगेन यू राइट फ्रेम नेम इज इक्वल टू राइट src इज इक्वल टू write.html, write.html. ठीक है, देन क्लोज द फ्रेम सेट टैग. ओके, यहाँ पर भी आप फ्रेम सेट टैग क्लोज कर दीजिएगा. ओके, क्या हो रहा है, फर्स्टली use a frame set tag, that means it defines, yet it tells the browser to divide the browser window into frames. Okay, frame set tag use किया. then use a rows, that means divide the frames into rows. Okay, divide the browser window into rows, that means you divide the browser window into rows. तो ये रोज आपका 25% 75% की ये एक रोज बन गई. ठीक है, अब इसके अंदर क्या, कौन सी फाइल ओपन होगी, फ्रेम. ये एक फ्रेम है, नेम क्या है, टॉप src top.html. तो यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी top.html की फाइल. जो भी आप top.html में आपने दिया होगा, जो भी कंटेंट दिया होगा, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, फ्रेम से टैग क्लोज हो गया. ये आपका ऊपर वाला फ्रेम बन गया. नेक्स्ट फ्रेम से टैग पोल्स. अब आपको कॉलम में अगर रखना है तो कॉलम में हमने 25% 75% का कॉलम बना लिया. ओके, अब पोल्स बन गया 25% 75% का. अभी एक कॉलम 25% 75% है, दूसरा कॉलम 25% 75%. कैसे डिवाइड होगा, देखिए फ्रेम सेट के अंदर दो फ्रेम, दैट मीन्स यहाँ पर कॉलम से दो फ्रेम का बनेगा. एक फ्रेम नेम लेफ्ट src left.html. तो ये लेफ्ट में, तो left.html की जो फाइल बनाई थी उसमें जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा. फिर फ्रेम नेम इज इक्वल टू राइट, दैट मीन्स ये src write.html. अब write.html में जो भी आपने कंटेंट लिखा है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा. तो आपके एक ब्राउज़र विंडो में 3 फाइल्स ओपन हो रही है. ठीक है, दैट इज़ अ फ्रेम टैग. ओके, दैट इज़ अ फ्रेम. तो फर्स्टली यूज़ अ फ्रेम सेट टैग, और विद इन अ फ्रेम सेट टैग यू यूज़ अ फ्रेम टैग. ओके, in a frame set tag you use a rows and columns tag. rows and columns attribute. attribute of frame tag क्या है, rows, columns and src. rows and columns according to your choice. if you want to create a row then use a rows attribute. if you want to create a column then use a columns attribute. Okay, src that means it define the url of the web page to be loaded in a particular frame. it is a url of the web page. यहाँ पर एड्रेस, दैट मीन्स यू कैन से दैट एड्रेस ऑफ द वेब पेज. तो यू राइट अ एड्रेस हियर. ओके, दैट इज़ अ फ्रेम सेट टैग. क्लियर है ये चीज़? आई थिंक आप प्रैक्टिकल करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब इसी में अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ बॉर्डर ऑफ द फ्रेम, जैसे ये है, ये फ्रेम है, ये एक फ्रेम बना हुआ है, ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है और ये एक फ्रेम है. ये 3 फ्रेम है, यहाँ पर 3 फ्रेम में अरेंज है. और अगर इन सभी फ्रेम्स का आपको क्या देना है, बॉर्डर देना है, बॉर्डर की साइज. ठीक है, इसकी तो जिस अकॉर्डिंग फ्रेम सेट, देखो ये फ्रेम सेट रोज वाला है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, बॉर्डर आपने दे दिया जैसे 5 का. तो ये जो चीज़ है, आपका जो बॉर्डर है
वो 5 विड्थ साइज क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है। अब अगर पोल्स को भी देना है तो यहाँ पर आप पोल्स का बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर इज इक्वल टू 4, 3 अकॉर्डिंग टू योर चॉइस व्यू। यहाँ पर आपने 4 का दे दिया तो यहाँ पर 4 उसका सेट हो जाएगा। ठीक है। फिर बॉर्डर कलर, अगर आपको चाहते हो कि बॉर्डर कलर भी है, जैसे ये बॉर्डर है, इसका बॉर्डर कलर आपका रेड हो, ठीक है, ये बॉर्डर कलर आपका ब्लू हो या पिंक हो, तो बॉर्डर कलर देने के लिए आप क्या करोगे, बॉर्डर में ही यूज़ कर दोगे। फ्रेम सेट टैग के अंदर जो यूज़ किया है उसी में आप दे दोगे बॉर्डर कलर। यहाँ पर आप क्या दे दोगे, बॉर्डर कलर, और बॉर्डर कलर देकर जो भी कलर देना है उस कलर को राइट डाउन कर दोगे। इसी तरह यहाँ पर भी बॉर्डर कलर। ओके, तो ये ऊपर वाले के लिए बॉर्डर कलर आ जाएगा, ये नीचे वाले के लिए बॉर्डर कलर आ जाएगा। ओके, सो आपका 4th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। फ्रेम टैग एक बार फिर से आप वीडियो देखिएगा, 2 बार देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और अगर प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास सिस्टम है तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा, अगर नहीं है तो सिर्फ एक ड्राई रन, दैट मीन्स कॉपी में एक आउटपुट बनाइएगा। आउटपुट बनाने के बाद उसकी कोडिंग करिएगा। ठीक है, फर्स्टली यू क्रिएट ए आउटपुट, देन राइट अ कोड। ठीक, HTML कोड। तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। कभी भी डायरेक्ट कोडिंग सिस्टम पे नहीं करते, सबसे पहले हम कोडिंग कॉपी में करते हैं, उसको ड्राई रन करवाते हैं, ड्राई रन करने के बाद हम उसकी कोडिंग करते हैं। और हमेशा जब भी कोडिंग करने से पहले उसका आउटपुट आपके माइंड में होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, आप किसकी कोडिंग करना चाहते हो। डायरेक्ट कोडिंग नहीं होती, पहले हम आउटपुट, जैसे कोई चीज़ अगर आपके घर में बननी है, कुछ भी फर्नीचर से रिलेटेड भी, तो फर्नीचर को पहले आप एक सिंपली वे में डिज़ाइन करते हो कि ऐसा ऐसा फर्नीचर हमको बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप लकड़ी लाते हो, कारपेंटर को बुलाते हो, और फिर कारपेंटर उसकी एक तरीके से कोडिंग करता है, उसको क्रिएट करता है। ठीक है, देन आपको फाइनल आउटपुट उसका मिलता है जो आपने एज्यूम किया था। ठीक है, उसी तरीके से हम सबसे पहले उस आप एक आउटपुट बनाओगे। आउटपुट बनाने के बाद जो भी आपका आउटपुट आया है, जो भी आप आउटपुट चाहते हो, उस आउटपुट के अकॉर्डिंग आप उसकी कोडिंग करोगे। ठीक है, और कोडिंग सबसे पहले हम कोडिंग कॉपी में करते हैं, ये नहीं डायरेक्ट सिस्टम पे, कोडिंग कॉपी में करते हैं। और कॉपी में करने के बाद हम हर एक लाइन वाइज आप देखते हो क्या इस जो ये लाइन है उस अकॉर्डिंग ये कोड हमारा इस आउटपुट में फिट बैठ रहा है। फिर उसके बाद आपने एक ड्राई रन कर दिया और फिर उसके बाद देन हमारे सिस्टम पे हम उसको यूज़ करते हैं, देन आपका एक फाइनल आउटपुट आता है। ओके, तो अगर सिस्टम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप इसका आउटपुट एज्यूम करिए। आउटपुट एज्यूम करने के बाद आप उसकी कोडिंग करिए। ठीक है, कोडिंग करने के बाद आप उसको ड्राई रन करिए और देखिए कि जिस अकॉर्डिंग मैम ने बताया था उस अकॉर्डिंग ये आउटपुट इसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा हमारे कोड के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो कि पूरा HTML से रिलेटेड चैप्टर था वो आज फिनिश हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका CSS से रिलेटेड है। ठीक है, CSS दैट मीन कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इससे रिलेटेड है। तो इस जो मैंने कोडिंग अभी बताई है ये सारी चीज़ें आप लोग करिएगा। ओके, इसका यूज़ करिएगा। और अगर सिस्टम नहीं है तो हम एक चीज़ और बताएंगे आप लोगों को, आपके मोबाइल तो सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन पे आप ऐसा करिए नोटपैड इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, नोटपैड पे आप कोडिंग करिए, उसको सेव करिए .html से, तो आप फिर उसको जाके ब्राउज़र तो रहते ही है नॉर्मल सभी उस पर ब्राउज़र पे उसको ओपन कर लोगे तो भी आपकी मोबाइल के थ्रू भी आप उसको आउटपुट ला सकते हो, दैट मीन्स HTML की कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, अगर होता है ठीक है, वरना स्कूल जब ओपन होगा तो आप ये सारी चीज़ें पूरा प्रैक्टिकली आप करके, क्योंकि आपकी थ्योरी तो कंप्लीट हो जाएगी, हम रिवाइज कर देंगे, फिर उसके बाद आप पूरा प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आपकी कंसेप्ट पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।